Good morning, student. Today we'll start with a new lesson, Major Dhyan Chand. Okay, who is Major Dhyan Chand? We will come to know in this lesson. Come, we'll start with the lesson. Saturday, 15th August 1936. It was the day of the hockey final during the Olympic events held in Berlin, Germany. That is in Germany. Okay, in 15th August 1936. See here, this is Major Dhyan Chand. Saturday, 15th August 1936. 1936 it was the day of the हॉकी फाइनल. ये हॉकी फाइनल का लास्ट दिन था ड्यूरिंग द ओलंपिक इवेंट्स. ओलंपिक इवेंट्स होता है दैट इज every 4 years. Okay, after the 4 years you'll have the event. Every 4 years you have that event, Olympic, and it was held in Berlin. That was in Germany. Okay, Germany had defeated several times to enter the finals against the Indian team. और ये Germany जो है it has defeated Indian for several times to enter the finals against. It has defeated the several times to enter the finals against the Indian team. यानी बाकी के जितने several teams थे उनको defeat करते हुए जर्मनी आए थे फाइनल में to fight against the Indian team. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. Perhaps that was the reason why their रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच. अभी इस मैच को देखने के लिए फॉर टू वॉचिंग दिस मैच हु हैज़ कम, दैट इज़ द हिटलर. ही वॉज अ रूलर ऑफ द जर्मनी. ही himself came to watch this match because it was a final and it's very crucial match. So it was was the reason why Hitler came to watch it. All the day before it had rained heavily. The entire field had become waterlogged. But 15th August, being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. What day before? जिस दिन मैच होने वाला the day before it rained heavily. Naturally, if it rained heavily, the ground had been completely filled with the water. The entire field had become waterlogged. Okay, it was filled with the water. But 15th August being the last day of the games, it was not possible to postpone the match any further. This 15th August was the last day. Games का last day होता है, इसको postpone नहीं किया जाता. अगर और भी events बचे रहेंगे तो postpone किया जाता. But it was the last day of the games. It was not possible to postpone the match any further. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. इंडियन टीम जो है जो प्रैक्टिस मैच खेला जाता है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है. जब भी कोई मैच होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, इससे पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है. वो क्रिकेट हो या कोई और गेम हो तो उसमें एक प्रैक्टिस मैच होता है. जो ये प्रैक्टिस मैच इंडिया और जर्मनी के बीच हुआ था उसमें क्या हुआ था, इंडिया हार चुके थे. तो दे वेयर अंडर द प्रेशर्स एंड दे वेयर नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद द वेट ग्राउंड. और इतना ही नहीं, वो जो गीले ग्राउंड में वो कम्फर्टेबल नहीं होते. गीले ग्राउंड में जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे खेलने के लिए इतना आसान नहीं होता. About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer. Okay, how many? 40,000 people were gathered to cheer the team जर्मनी अगेंस्ट इंडिया. यानी जर्मनी को चीयर करने के लिए 40,000 पीपल लोग ग्राउंड में जमा हुए थे चीयर करने के लिए अगेंस्ट द इंडिया. The Maharaja of Baroda state, the state Prince of Bhopal and few other Indians had also come to support the Indian team. इंडियन टीम की तरफ से भी कुछ लोग आए थे, मतलब इंडियंस भी काफ़ी थे. उसमें से महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट थे, दूसरा प्रिंस ऑफ भोपाल थे. ये लोग आके वहाँ पे इंडियन टीम को चीयर कर रहे थे. ओके, द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. The German team had adopted a novel strategy of using the Indian technique of the short distance passes against the Indian team itself. यानी जब खेल होता है तो स्ट्रैटेजी फाउंड किया जाता है, मतलब वो लोग प्लान करते हैं कि किस तरह खेलना है, कैसे पास करना है, किसको पास करना है, कैसे अंतराल में पास करना है, किसको पास. दैट इज ऑल डिसाइडेड. दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी. ओके, द जर्मन टीम हैड एडॉप्टेड अ नॉवल स्ट्रैटेजी यूजिंग द इंडियन टेक्निक. इंडियन टेक्निक को लेते हुए ध्यान में ये बनाया जा रहा था, स्ट्रैटेजी बनाया जाता. They had resorted to a very aggressive play. The Indian team was offering an equal strong resistance. यानी जर्मन प्लेयर लोग बहुत ही एग्रेसिव प्ले, मतलब जी जान लगा के खेल रहे थे. और उतने ही जी जान लगा के इंडियन टीम भी
खेल रही थी। नो टीम कुड मेक ए गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। कोई भी टीम कामयाब नहीं हो पाई कोई भी गोल करने में हाफ आवर तक। आपको अच्छी तरह से पता है, ये होते हैं सेशंस होते हैं, पहले का हाफ, फिर उसके बाद में थोड़ा गैप के बाद फिर दूसरा एक सेशंस होता है। ओके, तो इस दे वर सो फाइटिंग विगरसली दैट दे वर नन ऑफ द टीम वॉज एबल टू गोल। कोई टीम गोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दोनों भी जी जान लगा के खेल रहे थे। ड्यूरिंग द 32 मिनट रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, ईटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट एंगल। और 32 मिनट के बाद, गेम के 32 मिनट होने के बाद रूप सिंह करके जो इंडियन प्लेयर थे उन्होंने फर्स्ट गोल किया, वो भी एक डिफ़िकल्ट एंगल के थ्रू। In the second half of the match, the Indian team found a firm footing. The entire team played as one and made their 3 more goals against Germany. In the second half क्या हुआ? The Indian team found a firm footing and the entire team played as one and made 3 more goals against the Germany. यानी इंडियन ने और 3 गोल्स जर्मनी के खिलाफ किए उसके दूसरे हाफ में। 2 of them were made by the captain of the Indian team, ध्यानचंद। उसमें से 2 जो गोल किए गए थे वो इंडियन कैप्टन के द्वारा किए गए थे एंड इस नेम वॉज ध्यानचंद। However, the German players were also trying their level best to win. अभी इनका इंडियन का 3 गोल हुआ तो नेचुरली जर्मन वुड नॉट वो ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दे वर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन। दे टू सक्सीडेड इन मेकिंग 1 गोल। और इसी दौरान दे वर ऑल्सो सक्सीडेड इन मेकिंग, एक गोल बनाने में वो लोग भी कामयाब हो गए। नाउ ओनली अ few last minutes were left. Dhyancand had resolved to win. See here the match over here, how they are playing. These are the Germans and the Indians. Now only a few last minutes were left. Dhyancand had resolved to win the match at any cost without allowing जर्मन टू मेक एनी मोर गोल्स। अभी ध्यानचंद ने ये तय किया था कि जर्मन को कोई भी गोल करना नहीं देंगे वो, और उन्होंने जी जान उसमें लगा दिए कि अब उनके ओपोनेंट को एक भी गोल करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस स्पाइक शूज़ वे आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड। द स्पाइक शूज़, आप लोग प्लेयर्स लोगों के शूज़ वगैरह अगर देखे होंगे टीवी में वगैरह देखा तो उनको पता है इसमें पॉइंटेड होता है, नीचे का सोल की तरफ जो होता है इट इज़ पॉइंटेड बिकॉज टू होल्ड अ ग्रिप ओवर द ग्राउंड। तो वो स्पाइक शूज़ से वो उनको ईजी नहीं भागने में तकलीफ हो रही थी। ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद दैट एंड इट वॉज ऑल्सो है वेट ग्राउंड, तो वो फास्ट भाग नहीं पा रहे थे। ही रिमूव द शूज़ एंड द सॉक्स एंड बिगिन टू रन बेयर फुट। तो उन्होंने क्या किया, एक तो पानी की वजह से, बारिश की वजह से पूरा ग्राउंड गीला था और फिर उसके शूज़ भी अनकम्फर्टेबल थे, उनको भागने में मुश्किल हो रहे थे। उन्होंने सीधा अपने शूज़ और सॉक्स हटा दिए और नंगे पैर भागने लगे। यूजिंग इस अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड इस नियर मैजिकल गेम ही बिगेन टू सेंड 1 पास आफ्टर अनदर टू द प्लेयर्स ऑफ द डी। उनकी जो पासिंग ऐसी ज़बरदस्त थे कि एक के पीछे एक पास कर रहे थे डी सेक्शन में। आप लोग ने अगर ग्राउंड देखा है तो कैसे डिवाइड किया है, कैसे इसके फिगर है, उसका आपने देखा होगा कि किस तरह का ये होता है। तो उसमें डी एक सेक्शन होता है जहाँ पे वो दूसरे प्लेयर्स को पास करते थे। इन द डिफेंडर्स और द ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक अ गोल्स। उस डिफेंडर को या ओपोनेंट्स को ये करते, और द ओपोनेंट्स एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक द गोल्स, जहाँ से दूसरे लोग गोल्स कर सकते हैं ऐसे प्लेयर्स की तरफ वो पास करते थे। दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट। और वो जिनके पास भी वो बॉल आता था उसको, जो जिनके पास आता था वो उन्होंने भी उसे ज़ाया होने नहीं दिया, उसको वो गोल में तब्दील किया। द इंडियन टीम स्कोर्ड 3 मोर गोल्स। नाउ द इंडियन टीम वॉज एबल टू स्कोर 3 more goals. Dhyancand could have easily made the goals himself for his own position, but he never played a selfish game. क्या बताया जा रहा है, ध्यानचंद चाहिए तो अपने लिए वो खुद कोशिश करके गोल कर सकते ताकि उनका नाम हो सके कि ओलंपिक में ध्यानचंद ने इतने गोल्स खुद से किए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सेल्फिश माइंडेड नहीं थे। उन्होंने क्या किया, बॉल को दूसरे प्लेयर्स के पास करके, और वो दूसरे प्लेयर ने उसको
एक पोस्ट में डाल दिया और दे वॉज एबल टू सक्सेस गेट द गोल्स. Skillfully took the ball away from the German defender and made it possible for the players in the D to score goals. Okay, इस तरह वो सक्सेसफुली जर्मन के प्लेयर के हाथों से बॉल छुड़ाने में कामयाब हो गए और दूसरा अपने साथीदार के पास भेजने लगे. ओके, वी विल स्टॉप हियर. आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. अभी बताया फिर से, आई विल बी रिवाइजिंग. दिस इज ध्यानचंद. और 1936 में ओलंपिक गेम हुआ था. हॉकी का फाइनल था अगेंस्ट जर्मनी एंड इंडिया एंड दैट वाज प्लेड इन बर्लिन. वो जर्मन का एक पार्ट है, वहाँ पे खेला गया था. एंड बिफोर द मैच इट रेन्ड सो हैवीली दैट द होल ग्राउंड वाज फिल्ड विद द वाटर. यानी पूरा मैदान पानी से भरा हुआ था. और वो 15 अगस्त का लास्ट गेम का सेशन था. इसके लिए गेम्स को पोस्टपोन भी नहीं कर पाए. उन्हें मजबूरी में दोनों टीम्स को खेलना ही था उस टाइम को. और इस दौरान इंडियन टीम काफ़ी प्रेशर में थे बिकॉज उन्होंने पहले ही प्रैक्टिस मैच हारे थे जर्मन से. और अब पानी होने के वजह से वो कंफर्टेबल नहीं थे. बट स्टिल दे सक्सीडेड इन मेकिंग द गोल्स. फर्स्ट गोल किया था रूप सिंह ने 32 मिनट्स में. उसके बाद हाफ मैच के बाद 3 और गोल्स बनाए गए. उसमें से 2 कैप्टन ध्यानचंद ने बनाया था. सी ओके, आफ्टर उसके बाद और गोल्स बनाए उन्होंने. और बाद में जब उनको पैर चल नहीं पा रहे थे पानी की वजह से और उनका जूता जब उन्हें परेशान करने लगी, तो ये रिमूव द शूज़ एंड द सॉक्स एंड स्टार्टेड टू रन द बैरफुट. मतलब नंगे पैर वो मैच खेलने लग गए. उसके बाद और उसने और 3 गोल्स कर दिए. ओके, टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द अदर पार्ट ऑफ द लेसन. सो वी विल वाइंड इट अप राइट नाउ हियर. थैंक यू.